Yes, good morning everyone. Welcome back again in a new video that is for the same chapter, partnership. And today we are going to take a new topic, that is interest on drawings. As you all know that interest on drawings is not a new topic. ये टॉपिक हम पहले पढ़ चुके. याद कीजिए, whenever we have prepared P&L appropriation account, so many times we have seen that interest on drawings is recorded in the credit side of P&L appropriation account. Okay, so what's new in this? Now, at that time you have seen that drawings was one or two amount was there. Means that amount of drawings was given only once or twice in a question. But जो आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, इन दिस क्वेश्चन पार्टनर्स विड्रू so much amount after a fixed time period. Okay, after 2 months, 1 month, continuously. So today we are going to take interest on drawings, and it will be calculated in such a manner that there are two methods of calculating interest on drawings. Okay, as you are looking here, that there are two methods. The first one is the simple method and the second one is the product method. So interest on drawings हम दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से. सिंपल मेथड जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, द फॉर्मूला ऑफ सिंपल मेथड इज जस्ट लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. वैसा ही है जैसे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था. द फॉर्मूला इज अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12. याद कीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का भी ऐसा ही फॉर्मूला होता है, बस फर्क क्या होता है, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स की जगह वहाँ पे अमाउंट ऑफ कैपिटल आता है. ओके, तो सिंपल मेथड अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12. एंड द सेकेंड वन इज द प्रोडक्ट मेथड, टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू 1/12. देखिए, ये दो अलग अलग फॉर्मूले हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैलकुलेट करने के. चाहे आप सिंपल मेथड यूज करें, आइदर यू आर फॉलोइंग प्रोडक्ट मेथड और सिंपल मेथड, आंसर विल बी सेम. मैं भी आपको दोनों ही मेथड अप्लाई करके यहाँ बताऊंगा और दोनों ही मेथड से आंसर अपना सेम आएगा. बस फर्क क्या होता है, सिंपल मेथड में जो ये फॉर्मूला है ये हमें बार बार अप्लाई करना पड़ेगा, जबकि प्रोडक्ट मेथड में ये फॉर्मूला एक ही बार अप्लाई होगा, बट उससे पहले कैलकुलेशन हमें अलग से करनी पड़ेगी. तो प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट इज इक्वल टू ड्रॉइंग्स इंटू मंथ. जो ड्रॉइंग्स होगी अपनी, उनको मंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे कि कितने मंथ्स के लिए उन्होंने ड्रॉइंग्स की है. इज इट क्लियर? तो चलिए हम देखते हैं आज हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का टॉपिक, सिंपल मेथड एंड प्रोडक्ट मेथड, और हम इस टॉपिक को इस क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे. नाउ सी द क्वेश्चन. चारू इज ए पार्टनर इन ए फर्म. हर ड्रॉइंग्स ऑन 31 मार्च 2018 एज फॉलोज. उसने ईयर एंड 31 मार्च तक कैसे कैसे ड्रॉइंग्स की हैं ये आप देखिए. ऑन May 1 she withdrew rupees 20,000. On July 31 she withdrew rupees 10,000. On September 30 she withdrew rupees 30,000. November 30 40,000. Jan 1 20,000. March 31 25,000. Interest on drawings is charged at the rate of 9% per annum. Calculate interest on drawings. Okay, now in this question it is not clearly mentioned that which formula we have to apply. We have to just calculate interest on drawings. That is now, but we have to calculate interest on drawings from which method, it's depend on us only. If we want to calculate from the simple method, we can calculate from the simple method. If we want to calculate with the product method, we can calculate with the help of product method. As I told you earlier, that answer will be same, either you are applying simple method or you are applying product method. Just see, first I am applying simple method. So how can we calculate interest on drawings from simple method? Just see. So what was the formula? Amount of drawings into rate upon 100 into month upon 12. Let's see what is the first drawing. सबसे पहले देखेंगे हम, May 1 को उसने 20,000 विड्रू किया. Then amount of drawing is 20,000 into rate upon 100. So what is the rate? 9 upon 100 into month upon 12. देखिए, जो मंथ हम कैलकुलेट करेंगे उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से थोड़ा सा चेंज होगा. याद कीजिए, जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था तो मंथ कैलकुलेट कैसे करते थे, May 1 से 31 जुलाई, देन आफ्टर जुलाई 31 से सितंबर 30, कुछ ऐसे हमने वहाँ कैलकुलेट किया था. बट जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात होगी
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए आपको ध्यान रखना है, मंथ कैलकुलेट कैसे करेंगे, डेट ऑफ ड्राइंग से लेकर ईयर के एंड तक। ये चेंज है बेटा, बहुत बड़ा चेंज है। और आपने देखा होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में टोटल जो मंथ होते थे वो 12 आते थे अपने, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एक पर्टिकुलर डेट को निकाल रहा है और वो कब तक इंटरेस्ट उससे चार्ज करेंगे हम, एट द एंड ऑफ द ईयर तक। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में मंथ का कैसे करेंगे हम, जिस दिन विड्रू किया उस दिन से लेकर ईयर एंड तक। तो मई 1 को उसने विड्रू किया, मई 1 से लेकर 31 मार्च कितने मंथ्स होते हैं देखिए, 11 मंथ्स। तो 11/12। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, फिर लास्ट में कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए, उसके बाद हमने देखा जुलाई 31 को उसने 10,000 और विड्रू किए, वापस से फॉर्मूला लगाएंगे, 10,000 इंटू 9/100 इंटू मंथ अपॉन 12। मंथ देखिए इस बार जुलाई 31 से 31 मार्च, तो कितने मंथ्स होंगे जुलाई 31 टू 31 मार्च, काउंट कीजिए, 8 मंथ्स, तो 8/12। नेक्स्ट, आफ्टर दैट शी विड्रू ₹30,000, तो अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स 30,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ। मंथ देखते हैं हम, सितंबर 30 से 31 मार्च, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब एंड मार्च, 6 मंथ, तो 6/12। चलिए, फोर्थ टाइम उसने विड्रू किया 40,000, तो 40,000 इंटू 9/100 इंटू मंथ अपॉन 12। तो मंथ अपॉन 12 कब से, नवंबर 30 से लेकर 31 मार्च। तो नवंबर काउंट नहीं करेंगे बिकॉज इट्स नवंबर 30, नवंबर कंप्लीट हो चुका। तो दिसंबर जैन फेब एंड मार्च, 4 मंथ्स, 4/12। आफ्टर दैट शी विड्रू 20,000, तो 20,000 इंटू 9/100 इंटू कितने मंथ्स के लिए, 1 जैन से लेकर 31 मार्च ईयर के एंड तक, तो 3/12। आफ्टर दैट मार्च 31 को उसने 25,000 निकाले, तो 25,000 इंटू 9/100 इंटू 0/12। 0 क्यों, बिकॉज 31 मार्च को विड्रू किया और 31 मार्च को ईयर एंड होता है, तो नो टाइम पीरियड इज देयर, तो 0/12। ओके, तो हमने क्या देखा सिंपल मेथड में, बार बार ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, जितनी बार ड्राइंग्स करेंगे उतनी बार फॉर्मूला अप्लाई होगा। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इसमें क्या चेंजेस देखा आपने, टाइम पीरियड का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में याद कीजिए ये टोटल मंथ जो थे वो मिला के 12 आने चाहिए थे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में ऐसा नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या करते हैं हम, जिस दिन पैसा विड्रू किया उस दिन से लेकर ईयर के एंड तक। क्लियर है? चलिए हम कैलकुलेट करते हैं, अमाउंट कितना आएगा, 20 से 20 कैंसिल, 4 3 12, 4 5 20, 3 3 9, 1650। बेटा कैलकुलेशन मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, फिर भी बाय द वे कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप देख लेना, बट कैलकुलेशन इसी तरीके से होगी और लास्ट में इसका और उसका आंसर सेम आएगा। ₹600। देन आफ्टर 1350, 1200, 450, and it will be 0, because whenever we multiply any amount with 0 it will be always 0. Okay, so just make total. Five two 50. Okay, so from simple method, what is the total amount of interest on drawings? It is ₹5250. चलिए अब हम इसी क्वेश्चन को यदि प्रोडक्ट मेथड से करें तो भी हमारा आंसर कितना आना चाहिए, 5250। देखिए मैंने आपको कहा था जब क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं होता है, इट्स अप टू यू कौन सा मेथड आप लगा रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि आप दोनों ही मेथड से सोल्व कर दें, इतना टाइम नहीं होगा अपने पास कि सिंपल से भी और प्रोडक्ट से अपन सोल्व कर दें। बट ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि दोनों ही मेथड से आंसर सेम आएगा। तो चलिए प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं। प्रोडक्ट मेथड के लिए आपको बेटा ये वाला फॉर्मूला लगाना है। द फॉर्मूला इज टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 इनटू 1/12। तो इस फॉर्मूले को लगाने से पहले हमें चाहिए प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट का आता है ड्राइंग्स इनटू मंथ्स। तो पहले हम निकालते हैं प्रोडक्ट, दैट विल बी ड्राइंग्स इनटू मंथ्स। देखिए ड्राइंग्स कितनी थी अपनी, सारी ड्राइंग्स एक साथ लिखेंगे हम। 20,000, 10,000, 30,000, 40,000, 20,000, 25,000 मल्टीप्लाई बाय मंथ। मंथ हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए थे सिंपल मेथड में, तो यदि अभी भी आप कैलकुलेट करेंगे तो मंथ्स उतने ही आएंगे जितने हमने पहले कैलकुलेट किए थे। तो मंथ्स कितने कितने थे, फर्स्ट में 11, देन 8, देन 6, देन 4, देन 3 एंड देन 0। सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, फर्स्ट का होगा 2,20,000, सेकंड का होगा 80,000, थर्ड का होगा 1,80,000, फोर्थ का होगा 1,60,000, फिफ्थ का होगा 60,000, सेवन्थ का होगा 0, बिकॉज 25,000 मल्टीप्लाई बाई 0 दैट विल बी 0। बट हमें प्रोडक्ट ही नहीं चाहिए, हमें चाहिए टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट कैसे आएगा, जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स आए उन सबको यदि हम ऐड कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट। तो देखते हैं टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा, 220 प्लस 83 लाख, 4,80,000, 540, 640, 7 लाख। सो टोटल प्रोडक्ट इज 7 लाख। नाउ कम टू द फॉर्मूला। फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं। हमारा फॉर्मूला था प्रोडक्ट मेथड से टोटल प्रोडक्ट दैट इज 7 लाख इनटू रेट अपॉन 100। रेट वाज 9/100 इनटू 1/12, 1/12। तो बोले कितना आएगा, 3 3 9, 3 4 12, 2 से 2 0 कैंसिल, 1750 इंटू 3 दैट विल बी 5250। तो मैंने आपको कहा था that either you are applying simple method or you are applying product method, the answer will be same, and now it's up to you that which method do you want to apply in the question. Okay, so आज हमने क्वेश्चन नंबर 25 देखा और इसको हमने दोनों मेथड से कैलकुलेट करना सीखा, with the help of simple method, with the help of product method। सेम कैलकुलेट करने का जो सिंपल मेथड था वैसा ही था जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। व्हाट वाज द चेंज, चेंज था अपना टाइम पीरियड का। यदि टाइम पीरियड आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में देखें तो वहाँ आपने क्या किया था, जिस दिन कैपिटल लगाई उस दिन से लेकर नेक्स्ट कैपिटल चेंज तक देखा करते थे। बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में क्या करते हैं, जिस दिन पैसा विड्रॉ किया उस दिन से लेकर ईयर एंड तक हम देखते हैं। इज इट क्लियर? सो आई थिंक दैट यू गॉट दिस क्वेश्चन, एंड नाउ योर होमवर्क इज क्वेश्चन नंबर 5 A part and question number 5 B part. Okay, thank you very much. Stay safe, stay home.